Thank God for what we heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो हमने सुना उसके लिए। When we started, we had this verse from the verse of the day, Mark 13:33. जब हमने शुरू किया तो इस हफ्ते का जो मेमोरी वर्स था मरकुस 13 उसका 33 Says, watch out, stay alert, for you do not know when the appointed time is. देखो जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। Recently, I think I had shared, to pray for a colleague of mine, a friend of mine who was not well with COVID. और हाल ही में मैंने सबसे बांटा था कि मेरे सहकर्मी है उनके बेटे के लिए प्रार्थना करें क्योंकि उनको कोविड हुआ है। He passed away day first in the morning. और 2 दिन पहले उनकी सुबह मृत्यु हो गई। So Monday his son expired, and I think Friday early morning he expired. और सोमवार को सुबह उनके बेटे की मृत्यु हो गई और शुक्रवार के दिन सुबह उनकी भी मृत्यु हो गई। But I've been on the phone with him and certain things, but thing was that he'll be good, and he'll heal, and he had certain plans, and he told me that certain plans what he had ahead in life. Brother, could you repeat? I couldn't hear you. And when before he expired, we used to talk on a call, so he used to tell me about his plans that he had, further plans what he had. और उनके मृत्यु से पहले फोन पर हमारी बातचीत हुई थी और वो मुझे बता रहे थे कि आगे उनके भविष्य के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। But when I just recall those days, like when you spoke, said whatever things that he had in mind all went away. और जब मुझे वो वार्तालाप फिर से याद आता है तो जो कुछ उन्होंने कहा वो सब नहीं हुआ। The plans what he had couldn't be fulfilled. जो कुछ उनकी योजनाएं थी वो योजनाएं पूरी नहीं हो सकी। Like Bible tells me about my days. I was thinking about my days. I have some appointed days on this earth. I'm not going to stay alive the whole way. और बाइबल मुझे अपने दिनों के विषय में भी बताती है। बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर मेरा एक नियमित समय है। So how do I live that life? और मैं उस जीवन को कैसे जीता हूँ? There was one somebody had sent one small photo on the WhatsApp. It said, when you're waiting upon God, और किसी ने व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा था, उसमें कहा था कि जब आप परमेश्वर पर इंतजार करते हो, says do what waiters do. तब वही करो जो वेटर्स किया करते हैं। What they do, waiters they serve. और वेटर्स क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं। Like in hotels, when you have waiters, what they do, they serve. It says when you on the earth and waiting upon God to work in your life, do certain things, just be like a waiter, serve, nothing else. और जैसे होटल में वेटर्स होते हैं, जैसे वो सेवा करते हैं, वैसे ही जब हम परमेश्वर के ऊपर रुकते हैं, परमेश्वर की बाट जो होता है उसका इंतजार करते हैं, तब हमें भी सेवा करनी है। I was thinking, I don't know, like most of the times, I'm so concerned about my life and what's happening around to me, and so busy in so many things, but it's all that is surrounded, that thinking is surrounded, it's about me. और कई बार मुझे अपने ही जीवन की बहुत चिंता होती है, मेरा ध्यान उसी पर रहता है और जो कुछ मैं सोचता हूँ वो सब मेरे बारे में होता है। I like say, sometimes say I pray to God, I spend time reading the Word, I do many things. और कभी-कभी प्रार्थना करता हूँ या परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताता हूँ और इतनी सारी चीजें। But sometimes I see that most of the time the thing is centered about my own self. पर मैं देखता हूँ कि उसमें से अधिकतर समय उस सारी बातों का केंद्र मैं खुद हूँ। Bible says like we are this to be a light in our areas, be salt. और बाइबल हमें ये भी बताती है कि हम जहाँ कहीं भी है हमें वहाँ ज्योति और नमक बनकर रहना है। Sometimes I really pray to God. God, really, am I living that life? It's that thing that coming in my life. और कई बार मैं यही प्रार्थना करके प्रभु से पूछता हूँ कि प्रभु क्या मैं सचमुच ऐसा जीवन जी रहा हूँ? Saul became Paul when God, he
he worked on Paul and he worked on Saul and he showed him, he disciplined him, and then he was made as Paul. और शॉल जो था वो पौलुस में बदल गया, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, उसको अनुशासित किया और फिर वो पौलुस में बदल गया। And Paul, he had his heart where he wanted to learn day by day. He wanted to come more close day by day to God. और पौलुस की ऐसी इच्छा थी, उसका ऐसा हृदय था कि वो परमेश्वर को अधिक जानना चाहता था, दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के नजदीक आना चाहता था। So that's why he came to a place where he could say for me to live as Christ and die as gain. और इसी वजह से वो एक ऐसे स्थान तक पहुंच पाया जहां वो कह सकता था कि मेरे लिए तो जीना मसीह और मरना लाभ है। Even God has certain plans for our life also, my life also. और परमेश्वर की हमारे जीवन के विषय में भी कुछ योजनाएं हैं। But am I ready to submit my life to God that He can do work? पर क्या मैं सचमुच तैयार हूं कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करूं ताकि वो मेरे अंदर एक काम को पूरा कर सके? See, I won't say that reading the word is wrong or going to church is wrong or anything. But the most important thing is my life changing according to God will. That should happen. That is more important. और मैं ये नहीं कहता कि बाइबल पढ़ना गलत है या कलीसिया में जाना गलत है, पर सबसे मुख्य बात यह है कि मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलते जाए। What I learn from reading the word of God, what I hear from the church, that what God speaks should change my heart. और जो मैं बाइबल पढ़ते वक्त परमेश्वर से सुनता हूँ या जो मैं कलीसिया में सुनता हूँ, क्या वो मेरा जीवन बदलने के लिए, मेरा हृदय बदलने के लिए काम कर रहा है? No, it's God who is working in us. No? It's not we that are working, but God who is working in us to make a change. क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे अंदर काम कर रहा है, मैं अपने आप अपने अंदर काम नहीं कर रहा। This verse in Hebrews 12 और इब्रानियों 12 में एक वचन है and verse 11, उसका 11वां वचन says, for the moment of all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. और यहाँ लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। God who is working, He disciplines our life. It is painful. We have to change. We have to deny many things. We have to change our inner life. That is very hard. जब परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, जब वो हमें अनुशासित करता है, तो उसमें बहुत दर्द होता है, हमें अपने आप का इनकार करना पड़ता है, कई बातों को बदलना पड़ता है और वो बहुत मुश्किल है। But here it says that after that, when I'm disciplined, it yields me. It gives a peaceful fruit of righteousness. और यहाँ लिखा है कि जब हम इस अनुशासन को सह लेते हैं, तो उसके अंत में एक शांति और धर्म के साथ प्रतिफल हमें मिलता है। Like there's a peace in my heart, and because I know God is working in my life. और मेरे जीवन में एक शांति आती है, मैं ये जान जाता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। When in Revelation 3:19, और प्रकाशित वाक्य 3:19 में भी it says, to those whom I love, I reprove and discipline. So be jealous and repent. और वो यही कहता है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। Like God, when He loves me, that's why He disciplines my life. Sometimes there are times when I go down because He wants me. He wants to humble my life, then really change my life. और परमेश्वर मुझे इसलिए अनुशासित करता है, इसलिए ताड़ना देता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे जीवन में ऐसे समय इसलिए लाता है ताकि वो मेरे जीवन को बदलना चाहता है। The situation when you learn, you see certain things like last Monday when I went, I saw so many people, who were dying and they were taken to the graveyard and all that. But God is showing certain things. This is a part of life we live, but one day you have to go back. और इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमसे बात करता है। पिछले मंडे जब मैं जाकर देख रहा था कि कैसे कितने लोगों को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था, तो प्रभु वही कह रहा था कि एक तुम जियोगे और एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। But right now I was thinking, because when you read the Old Testament, when
Moses went to get the people out from Egypt. There were calamities happening, and there was a time when everybody was going to lose their first son, but the, the houses that had the blood of the lamb was saved. और हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, जब मूसा इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए जाता है, तब वहां बहुत सारी पीड़ाएं आ रही थी और सारे पहलौठे जो थे उनके वो मरने वाले थे, पर प्रभु ने कहा था कि जिस किसी के द्वार के बाहर वो लहू होगा, उनके पहलौठों को कुछ नहीं होगा। Today also we are saved by the blood of the lamb. और आज हम भी मेमने के लहू के द्वारा उद्धार पाते हैं। There are many things happening around, but it's the grace of God that we are saved. हमारे आसपास कई बातें हो रही है, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सुरक्षित हैं। That's why I was thinking about Brother sharing of Mary and Martha. The thing is, Martha had a lot of things to do, like a lot of worldly things, making food and all that. But Mary did the right thing, and she wanted to be with the Lord and hear from Him. और जब भाई मार्था और मरियम की भी कहानी बता रहे थे, तो मार्था को बहुत सेवा करनी थी, बहुत काम था करने के लिए, पर मरियम ने सही बात को चुना, वो प्रभु के साथ होना चाहती थी। God also wants us today to choose the right path, to be with Him, to listen to Him. और परमेश्वर भी चाहता है कि हम सही मार्ग को सुने, सही मार्ग को चुने, हम उसके साथ रहे और उसकी आवाज सुने। God is not interested in what things I am going to do, or what things. Its main matters is how my relationship with God is. और परमेश्वर इस बात में बिल्कुल भी चिंता नहीं रखता कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे जरूरी बात यह है कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है। Do I really have that life of Christ in me? क्या मेरे अंदर सचमुच मसीह का जीवन है? May God will help us to have that life of Christ and the Holy Spirit guiding us this days what we have in our life. That the name of the God and the name of Christ will always be be glorified. और परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे इन दिनों में कि हम जो कुछ करते उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो वचन मुझे मिला है, उस वचन को सुनने के लिए, और जैसा सुनते वैसा मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। सचमुच करेक्शन जो है बहुत बहुत जरूरी है मेरे जीवन में भी। और कुछ साल के पहले जब भी मैं पीछे मुड़ के देखे तो कई करेक्शन आया, मैं बिल्कुल उसको सुधारने में नहीं लाया और सुधारना नहीं करता था। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने अनुग्रह कार्य किया है, इस बातों को, करेक्शन को दिल में सही लेते हुए आगे बढ़ने के लिए। आज जैसा ब्रदर ने बात किया है कि करेक्शन के बारे में फिलिपियों के पुस्तक में 2 अध्याय में और 13 वचन में जैसा पौलुस इस प्रकार से बताता गया कि डरते हुए और कांपते हुए जो उद्धार मिला है उसको सही रखने के लिए हम ध्यान देना चाहिए बोल के। सचमुच इसको हम ध्यान देने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी अनुग्रह किया है। और जो आज जो मेमोरी वर्सेस है मार्क चैप्टर 13 और उसमें 33 में, और 33 में इस प्रकार से लिखा है, कीप लुकिंग, कीप अलर्ट, फॉर यू डू नॉट नो व्हेन द टाइम विल बी। और इधर लिखा है कीप लुकिंग। जब इस वचनों को मैं पढ़ने के बाद एक ही चीज याद आता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक रहता है, सिग्नल रहता है, जब इस सिग्नल आने के टाइम में मैं अलर्ट रहना मांगता है, क्योंकि सिग्नल तोड़ना नहीं, एक रहना मांगता है। अगर सिग्नल अगर तोड़ दिया है, एक्सीडेंट का मुलाकात करना पड़ता है वो भी, इसलिए मुझे उसका ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कई बार वो तो मैं करता हूँ सिग्नल तोड़ना नहीं बोल के, लेकिन कभी कभी ऐसे सिग्नल में हम आ जाते हैं कि उधर बिल्कुल गर्दी नहीं रहता है, और मेरे सोच में कभी कभी दूसरा कुछ सोच के मैं जाता हूँ, और जाने के समय में वो सिग्नल में आराम से मैं पास करता हूँ। पास करने के बाद मुझे याद है, अरे यार इधर सिग्नल था, मैं तोड़ दिया है बोलकर। लेकिन परमेश्वर के आत्मा मुझे सहायता करता है कि पश्चाताप करने के लिए नहीं, मैं ये नहीं करना मांगता था, मैं अलर्ट रहना मांगता है, इसलिए मैं ऐसा कर दिया है बोल के मैं पश्चाताप करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन में और किंग जेम्स वर्जन में लिखा है,
कीप वॉच एंड प्रे। इसलिए मेरे जीवन में हमेशा हम प्रार्थना करना मांगता है ताकि हम इस प्रकार का गलती ना करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन जैसा पौलुस रोमियो के पुस्तक में लिखा गया कि मैं तो मेरा शरीर में तो मैं पाप नहीं करना बोल के मैं समझता हूँ, लेकिन हो जाता है बोल के। लेकिन ऐसा ही मेरा भी जीवन में भी इस प्रकार से होता है, नहीं करना है बोल के हो जाता है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह किया है, तुम प्रार्थना करो। इसलिए प्रार्थना करो परमेश्वर के अनुग्रह। मेरे शक्ति से, मेरे सामर्थ्य से ये मैं अलर्ट नहीं रह सकता है और बुराई नहीं कर सकते बोल के मैं नहीं बोल सकता है। अगर इसमें से मुझे बचना है, ऐसा गलती नहीं करना है, लेकिन मेरा शरीर तो ऐसा करने के लिए लगा देता है। लेकिन ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू मुझे अनुग्रह कर, सहायता कर, आपका मदद मुझे चाहिए। यदि आप मदद नहीं करेंगे मैं बार बार गिरूंगा। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरा जीवन में चाहिए। इसलिए हमेशा एक अलर्टनेस चीजों के बारे में मैं सोच रहा कि जब भी होटल में खाना खाने के लिए जाता है, जैसा भाई ने बताया गया कि जैसा खाना होने के पहले भी वो जो वेटर है वो इंतजार करता है, जो कस्टमर आया है वो कभी मुझे बुलाएगा, कभी ऑर्डर देगा बोल के। सो ऑर्डर देने के बाद भी वापस बिल देने के बाद वो उसका नजर हमेशा जो कस्टमर का ऊपर रहता है, क्योंकि बिल पे करने के बाद उसमें कुछ टिप्स देने वाला है, उसको मालूम है, इसलिए उसका ऊपर भी वो नजर रहता है। तो इस चीजों को मुझे याद आता है कि जैसा वो वेटर थोड़ा कुछ पैसा टिप्स मिलेगा उसके ऊपर वो ध्यान रखता है हमेशा उसके ड्यूटी आवर्स में, वैसा मैं मेरे जीवन में जिस प्रकार से मैं अलर्ट रहना मांगता है ताकि छोटे छोटे पाप नहीं करना मांगता है बोल के। जो पिछले हफ्ता में ऐसा समय आ गया है कि जैसा कोविड के समय में जैसा फ्यूनरल में जाना पड़ा था, जब भी जाने के बाद उधर ऐसा घटना हो गया कि जैसा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते, अगर जो उधर व्यक्ति तो दफना करने के लिए आया था वो तो कोविड से 100% कोविड का पेशेंट था, लेकिन फिर भी जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। सो मेरे को उस समय पर मेरे को आवाज बढ़ाते हुए मेरे को उनको बोलना पड़ता है, प्लीज आप मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो बोल के। सो वो पूरा खत्म होने के बाद मैं घर में आया, परमेश्वर का आत्मा मुझे बात किया है, तेरा कोई जरूरत नहीं है तेरा आवाज बढ़ा के उनको सलाह देने का है बोल के। तो सबको उनको मालूम है किस प्रकार के अवस्था में उधर खड़ा है और कितना डिस्टेंस मेंटेन करने का है, किस प्रकार से उन लोग ध्यान देने का है बोल के। जब भी मुझे ये समझ आया है प्रभु मैं तो आवाज बढ़ा के बोल दिया है, एक काइंड ऑफ थोड़ा गुस्सा भी आ गया है ऐसे समय पर, लेकिन तुरंत मैं एक मैसेज डाला है कि उनको सॉरी आई रेज्ड माय वॉइस, मुझे माफ कर दो बोल के। जब भी माफी मांगने के बाद प्रभु ने सहायता करता है कि हमारा दिल में एक समाधान मिलता है, शांति मिलता है। तो इसलिए आज अलर्ट किस प्रकार से रहना, अलर्ट करने के लिए जब भी ध्यान देना और प्रार्थना करना, ये बहुत आज का मेमोरी वर्ड से परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस प्रकार से बात किया है। आमीन। In John 1:17 और यूहन्ना पहला अध्याय उसके 17 वचन में it says, for the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. वहां लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। When I look at Jesus, I don't see truth first. I see the grace of God, and then I see the truth in Jesus. जब मैं यीशु मसीह को देखता हूं तो मैं पहले सच्चाई नहीं बल्कि पहले परमेश्वर के अनुग्रह को देखता हूं, उसके बाद ही सच्चाई को देखता हूं। The Lord Jesus wants me to realize grace first, that it's His grace that helps me, and then I realize the truth in Jesus. और परमेश्वर चाहता है कि उसमें जो अनुग्रह है पहले मैं उसका अनुभव करूं और उसके द्वारा मैं सच्चाई को देखूं। The truth should be covered with grace always. पर जो सच्चाई है वो हमेशा अनुग्रह से उसको ढाकना चाहिए। When Jesus spoke, I believe why Peter was able to accept that, even though Jesus rebuked him so severely, Peter could accept it. Why it was that? Why was it? और जब यीशु मसीह ने पतरस को इतने कठोरता से डांटा, क्यों पतरस उसको आसानी से स्वीकार कर पाया? Because when Jesus spoke, even the strongest words, it was the spirit of grace.
क्योंकि जब कभी यीशु मसीह कहता था तो उसका सबसे कठोर शब्द भी अनुग्रह से भरा हुआ था। When I speak to my mouth, I can speak the same words as Jesus, but there will be no grace in it. Then it will not help the other person. जब मैं अपने मुंह से कोई शब्द बोलता हूं तो शायद मैं यीशु मसीह के ही शब्द क्यों ना बोलूं, अगर उसमें अनुग्रह नहीं है तो वो सामने वाले को उससे मदद नहीं मिलेगी। So I cannot produce this grace. It is impossible for me to produce the spirit of grace. और मेरे अंदर मैं इस अनुग्रह को उत्पन्न कर ही नहीं सकता। ये असंभव है कि मैं अनुग्रह की आत्मा को अपने अंदर उत्पन्न करूं। It says in the word of God that Holy Spirit is the spirit of grace. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा वो अनुग्रह की आत्मा है। And when I speak with the spirit of grace, the truth can be accepted easily. और जब मैं अनुग्रह की आत्मा से बात करूं तो सत्य को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। When my brother or sister or whoever it is, that brother or sister knows that I love him dearly, and then when I correct him, it will be easy to accept it. जब मेरा भाई या बहन इस बात को जानता है कि मैं उससे बहुत तीव्र प्रेम करता हूं, तब मेरे शब्दों को स्वीकार करना उसके लिए आसान हो जाएगा। When I realize that God loves me so much, it is easy to accept his correction. जब मैं इस बात को जान जाता हूं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, तब उसका सुधार प्राप्त करना, स्वीकार करना बहुत आसान होता है। Let me really look at Jesus and see his grace and his truth both together. और मुझे सचमुच यीशु की ओर देखना है और उसके अनुग्रह और सच्चाई को एक साथ देखना है। Let me ask, Lord, you fill me with the Holy Spirit so that when I speak to someone, I speak with grace and that living word of God I speak to them. और मुझे परमेश्वर से मांगना है कि जब कभी मैं बात करूं तो मैं परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा से भरकर बात करूं कि वो जीवित वचन उनसे बात करे। We know that Peter told in one place that you have the words of eternal life. There was a life in Jesus. और हम जानते हैं कि पतरस ने एक समय यीशु से कहा कि तुम्हारे पास अनंत जीवन के शब्द है। यीशु मसीह के पास जीवन के शब्द थे। When we have this life in us, when the spirit of life, the Holy Spirit is there in us and the word of God comes living to us, when we speak out that will really help and give grace and help that person. जब हमारे अंदर जीवन है, जब हमारे अंदर जीवन की आत्मा पवित्र आत्मा है और जब वो वचन हमारे लिए जीवित हो जाता है, तब हमसे वो शब्द निकलकर सामने वाले को भी जीवन देंगे। And when I hear from God or any other person the living word, it will really help me and help me to progress. और जब मैं परमेश्वर से या किसी और से एक जीवित वचन को सुनता हूं तो वो मेरी आगे बढ़ने में, उन्नति करने में सहायता करेगा। May God help us to live in the light and really be honest about whatever God shows us. Let us be honest about it. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो कुछ परमेश्वर हमें दिखाता है अपने जीवन में, उसके बारे में हम ईमानदार होते हैं। And let Jesus be the source of light and life in us. और यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवन का और ज्योति का स्रोत हो। Let us pray that we will have the spirit of humility to accept correction. हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर वो नम्रता की आत्मा हो कि हम सुधार को ग्रहण करें, स्वीकार करें। Not even in the heart, Lord, I don't want a spirit of rebellion. Even in my heart, even though that person doesn't know, I don't want the spirit of rebellion at all in my heart. प्रभु मेरे हृदय में भी, भले ही सामने वाला व्यक्ति न जाने, पर मेरे हृदय में भी उस बलवे की आत्मा को नहीं चाहता। Give me the spirit of humility to accept correction as Peter accepted that same spirit of humility. मुझे वैसी नम्रता की आत्मा दे जैसे पतरस ने उस सुधार को स्वीकार किया। Let Jesus be our source of joy and strength. और यीशु मसीह हमारे आनंद और सामर्थ का स्रोत बने। Amen. आमीन। ब्रदर, मैं एक टेस्टिमनी देना चाहता हूँ सबको। लास्ट वीक मुझे कुछ ऑफिस के काम की वजह से मुझे गुजरात जाना पड़ा और मैं काफ़ी मतलब विलिंग नहीं था गुजरात जाने के लिए बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। और मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे थे कि आप ये प्रोग्राम पोस्टपोन करो, लेकिन ये एक गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कुछ इसेंशियल काम था और उन्होंने बोला था कि आपको आना ही पड़ेगा। और फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब था कि मैं ये काम करने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि गुजरात से भी बहुत ख़राब न्यूज़ आ रही थी। मुझे बड़ौदा में काम था और बड़ौदा से काफ़ी ख़राब न्यूज़ आ रहे थे। तो फिर मैंने, और मुझे उन्होंने गुजरात एंट्री के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आना भी मैंडेटरी था। तो फिर मैंने ट्राई किया, वो ऑफिसर्स को मैंने बताया कि मैं यहाँ पे लैबोरेटरीज़ में बात कर रहा हूँ रिपोर्ट के लिए, लेकिन वो लोग बोल रहे 6-7 दिन लगेंगे।
और फिर आपका क्लॉज ये है कि 72 आवर्स प्रायर रिपोर्ट होना चाहिए, तो वो नहीं आएगा रिपोर्ट और ये, तो आई वाज जस्ट अवॉइडिंग दैट टू गो देयर, बट फाइनली वो बहुत ही इसेंशियल काम था, मुझे जाना ही था। फिर मैंने लॉर्ड से बात की और काफ़ी प्रेयर की, और मैंने लॉर्ड से बोला, लॉर्ड मैं अवॉइड कर रहा हूँ जाने के लिए, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ ये अवॉइड करने में या पोस्टपोन करने में, तो मैं जाऊँगा। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा फेथ है कि आप मेरे साथ रहोगे और आप मुझे हर वायरस से प्रोटेक्ट करोगे। क्योंकि वहाँ पे जाना था, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम करना था, एक मशीन का ट्रेनिंग और डेमोंस्ट्रेशन था, तो मुझे बहुत सारे लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को हाथ लगाना पड़ेगा। तो ये कर रहा था, और उसी टाइम मतलब 1 दिन पहले मैं जस्ट वही माइंड में था कि कैसे करूँ, गाड़ी अरेंज करूँ, ड्राइवर लेके जाऊँ, या ये सब कुछ कर रहा था। और उसी टाइम मुझे थोड़ा ऐसे फ़ील हुआ कि मैं हमारे चर्च के एल्डर अबू ब्रदर को मेरे लिए प्रेयर करने बोलूँ, और ये मेरे माइंड में था। उसी सेकंड अबू ब्रदर का मुझे कॉल आया, और अबू ब्रदर का काफ़ी दिनों के बाद कॉल आया, और उसी समय कॉल आया, और अबू ब्रदर ने भी मुझे बोला कि मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। फिर मैंने अबू ब्रदर को बताया कि अबू ब्रदर, 1 सेकंड पहले मैं आपके बारे में सोच रहा था, और आपको मेरे लिए प्रेयर करने के लिए मैं फ़ोन करने वाला था, और आपका फ़ोन आया। तो दैट टाइम आई वाज़ रियली कॉन्फिडेंट कि नहीं, लॉर्ड मेरे साथ है, अबू ब्रदर ने मेरे लिए प्रेयर किया। मैं अबू ब्रदर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट इट वाज़ अ ट्रू इंसिडेंट, और आई टोल्ड हिम आल्सो कि 1 सेकंड पहले मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, एंड यू कॉल्ड मी। सो उसके बाद फिर आई वाज़ रियली कॉन्फिडेंट, एंड देन आई वेंट देयर। The whole journey was really safe, everything went well, my demonstration training was successful, completely successful, and now it's a week time, मैं एकदम healthy हूँ, fit हूँ, कोई भी infection नहीं हुआ। और ये इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त करेज मुझ में आया है, और मैं ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हूँ कि लॉर्ड इज़ विथ अस, ही विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एवरी इविल थिंग, एंड ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू फेथ। और मुझे एक अच्छा मौका मिला कि लॉर्ड को मेरा फेथ दिखाने के लिए, एंड आई डिड इट, एंड नाउ सो आई एम फीलिंग सो ग्रेट। सो ये मेरा टेस्टिमनी था। सारी ग्लोरी, कृपा जो है वो, और सारी महिमा, सारा आदर मैं लॉर्ड को देता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ लॉर्ड की, मैं लॉर्ड को थैंक्स बोलता हूँ। ये सब लॉर्ड की मर्सी और ग्रेस की वजह से हुआ है। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और पिछले दिनों में हेल्थ में मैं काफ़ी डाउन था, बट प्रभु ने इस समय में काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई कि जब हम अपने आप को जांच पाते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को ला पाते हैं। और प्रभु का मैं बहुत आभारी हूँ कि प्रभु सच में सब बातों से भलाई को उत्पन्न करता है। हमारी कमज़ोरियों में भी परमेश्वर हमें वो बल देता है, वो अनुग्रह देता है। एक चीज़ जो मैं बहुत ही प्रोत्साहित था इन दिनों के अंदर, जैसे मैं मेडिटेट कर रहा था, तिमुथियुस की पुस्तक का दूसरा तिमुथियुस जो है उसके 4थे अध्याय में पढ़ रहा था। बहुत ही एक ऐसे हालात से पौलुस जा रहा था जहाँ पर बंदीगृह में है, उसका सबसे अंतिम ये पत्र है। इसके बाद वो भी जानता था कि अब वो यहाँ से मरने वाला है, नहीं बाहर निकल पाएगा। सब कुछ जैसे कि पूरी रीति से उसके लिए बंद हो चुका था, सारी आशाएं जा चुकी थी, और पूरे पत्री के अंदर कहीं पर भी वो अपने छूटने के लिए, अपने अच्छे गुड हेल्थ या कहीं पर वो प्रार्थना इस प्रकार विनती नहीं करता है। लेकिन वहाँ पर वो अंतिम भाग में मैंने उसको पढ़ा, उस वचन को, वहाँ पे लिखा 2 तिमुथियुस उसका 4था अध्याय, 2 तिमुथियुस तिमोथी 4 एंड उसका 16, वहाँ पे लिखा है, मैं NLT अनुवाद में पढ़ूंगा। Everyone had abandoned me, I hope it will not be counted against them. 17 But the Lord stood with me and gave me strength। और ये 17 वचन बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ उसके विपरीत जा रहा था, पर उसको एक कॉन्फिडेंस था कि लॉर्ड स्टूड विद मी एंड गेव मी स्ट्रेंथ। ये बहुत ही अद्भुत वचन मुझे लगा कि प्रभु हमें हमारी परिस्थितियों के मध्य में एक स्ट्रेंथ को देता है, हमारे साथ वो खड़ा रहता है, वो हमारे साथ है। और यही वचन से मुझे प्रभु ने आशीषित किया कि ये कोविड का सिचुएशन, जब सारी चीज़ें चल रही है, जब मैं परमेश्वर को खोजता हूँ, तो परमेश्वर को खोजने के साथ बहुत सारी ज़रूरतें, प्रार्थना, विनती, परिवार, नौकरी, सारी चीज़ें मैं साथ में लेकर प्रभु के साथ आता हूँ।
लेकिन एक वचन से प्रभु ने मुझे आशीषित किया, वो है भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसका 5 वचन, Psalm 16 वर्स 5। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हिंदी में लिखा है कि यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तू स्थिर करता है। दूसरे अनुवाद में NLT में मैं पढ़ रहा था इसको, लॉर्ड यू अलोन आर माई इनहेरिटेंस, माई कप ऑफ ब्लेसिंग, यू गार्ड ऑल दैट इज माइन। और इस वचन ने मुझे सच में ब्लेस किया कि क्या आज मैं परमेश्वर को एज इफ ही अलोन इज माई इनहेरिटेंस, क्या वही मेरा भाग है, मेरा विरासत है, क्या मैं उस रीति से खोजता हूँ या मेरी और भी ज़रूरतें लेकर आता हूँ परमेश्वर के साथ कि प्रभु भी चाहिए और मुझे सारी और भी चीज़ें चाहिए। जैसे 73 के अंदर असाफ लिखता है कि प्रभु इस संसार में स्वर्ग में तुझे छोड़ और प्रभु मैं किसी चीज़ को नहीं चाहता हूँ। मैं अपने आप को देख पा रहा था, प्रभु मैं उस लेवल पे अभी तक शायद नहीं आया हूँ मेरे आत्मिक जीवन में, और एक कलीसिया के रूप में हमें उस वहाँ पर आने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम सच में ये भजन संहिता 16:5 हमारे जीवन के अंदर सही हो सके, कि जहाँ पे परमेश्वर अकेला हमारा भाग बन सके, हमारा एक इनहेरिटेंस बन सके। बाकी सारी चीज़ें अगर गिरती हुई नज़र आए मुझे, शायद मेरा हेल्थ हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, आसपास के सपोर्ट सिस्टम हो सकते गिरते हुए नज़र आएंगे, लेकिन यदि मैं परमेश्वर को देखूंगा कि तू ही मेरा भाग है। पौलुस ने भी अंतिम जीवन में प्रभु को भाग माना, असाफ ने माना, और मैं इससे चुनौती पाता हूं कि इस कोविड के सिचुएशन के अंदर एक कलीसिया के रूप में आए हम परमेश्वर को एकमात्र भाग है, वो हमारा एकमात्र इनहेरिटेंस है, उसको छोड़ कोई और नहीं है हमारे लिए। उसको जैसे हम खोजेंगे तो उसका अंतिम जो वायदा उसमें लिखा है, यू विल गार्ड ऑल दैट इज माइन। हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर की सुरक्षा करे, हमारे परिवार की, कलीसिया की सुरक्षा करे, हमारे जो सारे प्रिय लोग हैं सुरक्षा करे, लेकिन उसके पहले वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर को अपना एकमात्र इनहेरिटेंस या भाग मानेंगे, परमेश्वर गार्ड करेगा जो सब कुछ हमारा है। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वचन से मुझे उठाने के लिए और मुझे प्रायोरिटीज मेरी अलाइन करने के लिए, कि आज मैं किन बातों को परमेश्वर को खोज रहा हूँ, कि एक भाग के रूप में खोज रहा हूँ, एक चुनाव, एक ऑप्शन के रूप में खोजता हूँ। परमेश्वर भी चाहिए और सारी ज़रूरतें भी होनी चाहिए। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन से मुझे प्रोत्साहित करने के लिए और उठाने के लिए। From the memory verse, God was speaking to me 2 things. और मेमोरी वर्स से परमेश्वर मुझसे 2 बातें बात कर रहा था। One is I should be ready for the coming of the second coming of Jesus Christ. एक तो ये कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए मुझे तैयार रहना है। Or other thing, I do not know when my appointed time to depart from this earth. और दूसरी बात ये कि मैं नहीं जानती कि मेरा वो समय कब आएगा जब मुझे इस पृथ्वी को छोड़कर जाना होगा। So I should be ready for that also. और मुझे उस बात के लिए भी तैयार रहना है। So how I can be ready? और मैं कैसे उसके लिए तैयार हो सकती हूँ? Something only I can be ready by keeping my conscience clear always before God and man. मैं तैयार तभी हो सकती हूँ जब मैं परमेश्वर और लोगों के सामने अपने विवेक को साफ रखूं, शुद्ध रखूं। Whenever I am falling in sin, immediately I am repenting and clear my conscience. जब कभी मैं पाप में गिरती हूँ, तुरंत मैं अपने मन फिराती हूँ और अपने विवेक को शुद्ध करती हूँ। So I have to be keep on alert to from which side of the sins is creeping into my life, which area it's coming. और इसलिए मुझे जागते रहना है, ध्यान देना है कि किस जगह से, किस दिशा से पाप मेरे जीवन में आ रहा है या बढ़ रहा है। And to make for the second coming of Jesus, to make me ready, that my husband or my children or anybody else cannot help me to make me ready. और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए मेरे पति, मेरे बच्चे या दूसरा कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। That I have to do it by myself. मुझे वो अपने आप से करना होगा। From Revelation 19:7. प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7। Let us rejoice and be glad and give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है
और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. That the bride has made herself ready. और वो जो दुल्हन है उसने अपने आप को तैयार कर लिया है. In the world we'll see the bride, others are making herself, others are making her ready. और संसार में तो हम देखते हैं जो दुल्हन होती है उसको दूसरे लोग उसको तैयार करते हैं. But Jesus' bride is made herself ready. और यीशु मसीह की दुल्हन है जो अपने आप को तैयार करती है. So I have to be on alert to make myself ready for the coming of the Jesus. और इसलिए मुझे सावधान रहना है, अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह के आगमन के लिए. From 2 Corinthians 7:1. दूसरा कुरिन्थियों 7:1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. So there are defilement of flesh and spirit in my life. और मेरे जीवन में शरीर और आत्मा की मलिनताएं हैं. Oh, that I need to cleanse myself. और उससे मुझे अपने आप को शुद्ध करना है. Only that I can do it by fearing God in my secret life. और ये तभी मैं कर सकती हूँ जब मैं अपने गुप्त जीवन में परमेश्वर का भय रखती हूँ. If I am fearing God, I will cleanse myself continuously. Whenever there is defilement in my flesh or spirit, immediately the Holy Spirit will remind me, and I will cleanse that by the blood of by the Lamb. अगर मैं परमेश्वर का भय रखती हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को साफ करूंगी. जैसे ही पवित्र आत्मा मुझे कुछ दिखाए तो मैं अपने आप को साफ करना चाहूंगी उस मसीह के लहू से. I want to keep on alert for my own life in this way. और इसी प्रकार मैं अपने ही जीवन के लिए सावधान रहना चाहती हूँ. Amen. Amen. Really praise the Lord for what we could hear and what the Spirit, God's Spirit, could speak to us. हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए जिनको हम सुन पाए और उस आत्मा के द्वारा जो प्रभु ने हमसे कहा. Just remember, make ourselves remember what we heard today. और अपने आप को बस आज ये याद दिलाने के लिए कि आज हमने क्या सुना. Welcome correction, accept our mistake. कि हम सुधार और डांट को स्वीकार करें, उसका स्वागत करें और अपनी गलती को मान लें. We are not at all perfect. हम बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हैं. But we are pressing towards perfection. और हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं. And when I press towards perfection, it cannot happen by myself. It can only happen by the power of God and the leading of the Holy Spirit. और जब मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाता हूं तब मैं अपने सामर्थ्य से इसको नहीं कर सकता. ये सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सहायता से मैं कर सकता हूं. May the Spirit of God lead us and bless us. परमेश्वर की आत्मा हमें आशीष दे और हमें चलाए.